10:30 ਵਜੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਤਰਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ही नहीं होया। 120 साल की रवायत के बाद यदी जाली टूटी है। सुनने में बाद में यही आया कि वो इंतजामिया से लड़ झगड़ के बदतमीजी वगैरह करके ऊपर पहुंचा है। ऊपर जाके तो वो यही आवाज़ें लगा रहा था कि मेरी शादी करवाओ, शादी करवाएंगे तो मैं नीचे आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, इस वक्त मेरे अक़ब में आप घंटा घर देख सकते हैं। फैसलाबाद की तारीखी इमारत है और कुछ ही दिन कबल ये तमाम लोगों की निगाह का मरकज़ बना रहा। उसकी वजह ये थी कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है एक नीम पागल शख्स जो है वो इस घंटा घर के ऊपर चढ़ जाता है और जो रेस्क्यू एहलकार हैं उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से पथराव करता है और मुख्तलिफ तरह की डिमांडें करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसका कहना था भाई मेरी दूसरी शादी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आदि मुजरिम था, नशे करता था। जब हमने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि हम भी ऊपर जाना चाहते तो उन्होंने हमें रोक दिया कि भाई सख्ती हो गई है। और ये एक सवालिया निशान भी है कि आखिर एक नीम पागल शख्स किस तरह से इस इमारत के ऊपर चढ़ जाता है और खाना ख़राब कर देता है। जब उसकी वालदा से बात करने की कोशिश की गई तो उसकी वालदा ने कहा कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बाकायदा तौर पर मुझ पर हाथ उठाता था और ये तकरीबन पागल है, नशई है और अपनी मर्ज़ी से चढ़ गया है और मुझे इसने बदनाम कर दिया है और कुछ इस तरह की बातें। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि वो वीडियोस हमने डिफरेंट एंगल्स से देखी हैं, आप लोगों ने भी यकीनन देख रखी होंगी। तो यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाजी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अकरम कुरैशी। अकरम कुरैशी साहब, तबीयत सेहत मजाज सब अल्लाह ठीक? पाक दी रहमत। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ, ਖੈਰ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 10:30 ਵਜੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਸਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਚ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 'ਚ 10:30 ਵਜੇ। ਚੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਏਡੀ ਉੱਤੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਦਿਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸਲ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ। ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰ 7-8 ਵਜੇ ਕਹਿ ਲੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨਾਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਭੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਲਾ ਆਇਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਤਰਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, 15 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਗੋ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਗਾਲਬਨ 117 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं, ऐसा कदे नहीं होया। कभी नहीं होया 17 साल नहीं ऐसा फैसलाबाद ऐसा कोई वकूआ ही नहीं होया।
ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ 4 ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ, ਮਾਰੀਏ, ਅਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ गए सर। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, एक ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये 31 दिसंबर के दिन का वाक़या है और ये उस वक्त यहाँ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इनसे पूछते हैं कि असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? मोहम्मद अवैस रज़ा। अवैस रज़ा भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ट्रैफिक जैम थी, हमने वीडियोस देखी, बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो गई थी, आप भी तंग आ गए होंगे, वो आदमी ऊपर गया कैसे? वो सुनने में बाद में यही आया कि वो इंतज़ामिया से लड़ झगड़ के बदतमीज़ी वगैरह करके ऊपर पहुंचा। तो इंतज़ामिया की यही कोशिश थी कि उनको ऊपर ना जाने दिया जाए उस आदमी को, लेकिन वो बदतमीज़ी करके वो चढ़ गया था ऊपर। यार वो इतना ही हैवी हो गया इन पे? ये हमें तब तो नहीं पता चला क्योंकि जब आवाम का रश बना है तो हमने ऊपर देखा, वो चढ़ा, हमने तो उसको ऊपर चढ़ते ही देखा है, मतलब हम जाते हुए भी नहीं हमने उसको देखा। बाद में ये आवाम से पता चला कि वो बदतमीज़ी करके ऊपर गया है। मुझे बताइएगा, ऊपर चढ़कर वो कोई आवाज़ें लगा रहा था या कोई मुतालबा कर रहा था या खुदकुशी करने की नीयत से गया था? जी, ऊपर जाके तो वो यही आवाज़ें लगा रहा था कि मेरी शादी करवाओ, शादी करवाएंगे तो मैं नीचे आऊँगा, इस तरह की वो हरकतें कर रहा था। तो किसी परिंदे से शादी करनी इतनी ऊंचाई पर चला गया है? ये तो वो उसी से पूछ सकते हैं कि उसने किससे करनी थी, वो उसी से पूछ सकते हैं आप। आपने उस बंदे को लाइव देखा है तो क्या आपको लग रहा था कि वो नशेई है या पागल है? देखने से तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था उससे तो ऑब्वियसली यही शो हो रहा था कि वो कोई मेंटल केस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने लोगों की भी बातें जानी जो कि ऐनी शाहिदीन थे इधर, और ये एक दरवाज़ा है जिसे अभी गालबन ताला लगाया गया और एक इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पर नस्ब है। ये 2 ही दरवाजे, पता नहीं वो दरवाज़ों से गया या फैलांग कर गया, ये एक अलग टॉपिक है। और चूँकि लाहौर दा पावा अख्तर लावा वायरल हो गया और मेरा दिल जे पुकारे आजा, तो 31 दिसंबर था तो फैसलाबादी था, और तो उसने सोचा कि मैं अगर पीछे रवां, ਵੀਰੇ मैं भी उत्ते जाना, इदा करांगा कि मेरा ब्याह करा दियो तो कुछ ना कुछ तो हो जाऊगा। तो बस इसी सिलसिले में मेरे ख्याल से वो गया था। खैर, आपने तफसीली जान लिया कि क्या मामलात है। इस वक्त वो बंदा जुडिशल हो चुका हुआ है और बहरहाल हम यहाँ पर सलाम पेश करेंगे, मैं और मेरी पूरी टीम डेली धरती की जानिब से, उस रेस्क्यू एहलकार को जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, जो कि अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।